نواز شریف نے نون لیگ چھوڑنے والوں کو ڈکٹیٹر کے ساتھی قرار دے دیا. کہتے ہیں وہ ہمارے کبھی تھے ہی نہیں. انہوں نے مجھے اسمبلی میں بھی ووٹ نہیں دیا تھا. پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. عمران خان جیسے بندے کا سیاست میں آنا کوئی نیک شگون نہیں. شہباز شریف کی نون لیگ کے اراکین کو راضی رکھنے کی کوششیں. غلام بی بی، ڈاکٹر ذوالفقار، مدثر قیوم اور دیگر اراکین کی ملاقات. جنوبی پنجاب کے اراکین بھی ملیں گے. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے شکست خوردہ سیاسی عناصر نے جھوٹ، بے بنیاد الزامات اور گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا. چودھری شجاعت حسین کی کتاب سچ تو یہ ہے کہ رونمائی کی تقریب. کئی سیاسی رہنما اور صحافی شریک. شوکت عزیز نے پرویز مشرف سے افتخار چودھری کی شکایت کی. 2008 میں امریکہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا. چودھری شجاعت کا کتاب میں انکشاف. خطاب میں کہا، کتاب میں وہی لکھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. جس مقام پر ہوں چودھری ظہور الہی کی وجہ سے ہوں. شیخ رشید کا کہنا ہے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا بڑا پن ہے. نواز شریف NRO کی تلاش میں ہے. کاش پاکستان میں چین جیسا نظام آ جائے، کرپٹ لوگوں کو گولی مار دی جائے. ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت. نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت میں پیش. خواجہ حارث کی واجد ضیاء پر جرح. FZE کی دستاویزات لانے پر برہم. کہا جب شواہد پیش کیے اس وقت انہیں خیال کیوں نہیں آیا. PTV پارلیمنٹ حملہ اور SSP تشدد کیس کی سماعت. عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری. دہشت گرد ملزم پیش ہو گیا. عمران خان کا کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مکالمہ. عمران خان نے نواز شریف اور مریم نواز کے موقف کی تائید کر دی. کہتے ہیں احتساب عدالت کی کارروائی براہ راست نشر ہونی چاہیے تاکہ عوام حقائق جان سکیں. مزید بولے نواز شریف پر جوتا پھینکنے والے پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا کیا؟ یہ تو حال ہے. کپتان کی کمرہ عدالت میں 24 نیوز سے گفتگو. نواز شریف بھی ملک کے لیے کچھ نہ کرتے اور سکون سے 5 سال گزارتے تو شاید ایسا نہ ہو. آپ بھی ملک کے لیے دن رات ایک نہ کرتے اور کسی کے اشارے پر چلتے تو شاید ایسا نہ ہو. ہر 10 سال بعد گھوم پھر کر معاملہ نواز شریف کی جانب ہی کیوں آ جاتا ہے؟ مریم نواز کی گفتگو. پولیس کی نوکری کریں یا عزت بچائیں. اسلام آباد پولیس لائن کی خواتین اہلکار افسروں کی زیادتی پر پھٹ پڑی. انکوائری کے نام پر خواہشات پوری کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. چیف جسٹس کو خط. IG کا انکوائری کا حکم. 3 مشتبہ اہلکار معطل. چیچا وطنی میں 8 سالہ نور فاطمہ سے زیادتی اور قتل کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال. وکلا کا عدالتی بائیکاٹ. مقتولہ کی نماز جنازہ ادا. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس. تحقیقات کا حکم. IG سے رپورٹ طلب کر لی. آپ جب خود کو لاچار کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کوئٹہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے دورے پر خطاب. کہا ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ نے میرا سر شرم سے جھکا دیا. مقدمات زیادہ ہیں. وکلا ہڑتال نہ کر کے ہمارا ساتھ دیں. جن کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے وہ قانون سازی نہیں کرتے.
चीफ जस्टिस का बलूचिस्तान में 15 रोज में तालीमी पॉलिसी बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के पैसे कौन खा गया? सूबे में कोई गवर्नेंस नहीं, पेंडोरा बॉक्स बना हुआ है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तालीमी इदारों और अस्पतालों की अबतर सूरत-ए-हाल के केस की समाअत। चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत पर बरहम। एमक्यूएम पाकिस्तान इंतशार का शिकार। सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद सरदार अहमद सियासत से दस्तबरदार, कहते हैं सियासत में कोई गैरत नहीं। पीएसपी रहनुमा दिलावर कुरैशी का कहना है कि हम में गैरत थी, इसीलिए एमक्यूएम से मुनहरिफ हुए। एमक्यूएम बहादुराबाद के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फारूक सत्तार से राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फारूक भाई की मुश्किल को समझते हैं, किसी न किसी तरह इख्तलाफात का हल निकालने की कोशिश की। फारूक भाई के साथ मसला किसी हल तक पहुंच जाएगा। मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद एमएमए में मजीद पार्टियों को शामिल करने का फैसला। एमएमए रहनुमाओं ने तहरीक लब्बैक से राबिता कर लिया, पाकिस्तान अवामी तहरीक से भी राबिते। लड़ाका चीनी इंजीनियर्स नापसंदीदा करार, 5 को मुल्क से निकाल दिया गया। निकाले गए चीनी इंजीनियर्स कबीरवाला में सिक्योरिटी एहलकारों से झगड़े में मुलव्वस थे। कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिन, फाइनेंस ऑफिसर, फील्ड और मटीरियल इंजीनियर्स को इंक्वायरी कमेटी ने नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने पर लांडी और कोरंगी में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। कराची में दूध की कीमतों का मुसलसल बहरान। शहरी अब भी दूध 100 से 105 रुपए लीटर खरीदने पर मजबूर। शहरी इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में आपका की रैली पर पुलिस का धावा। मुजाहिरा करने वाले सैकड़ों मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चौथा सनती इंकलाब दस्तक दे रहा है। पत्थर हटाने और पहाड़ हिलाने का वक्त आ चुका। सी पैक में शामिल गवादर बंदरगाह आलमी तजारती मरकज बनने वाली है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का चीन में बाओ फोरम से खिताब। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं? और ढोल पर शानदार परफॉर्मेंस देने वाली अर्शमा मरियम 24 न्यूज़ की मेहमान बनी।
24 न्यूज बाखबर 24 घंटे। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी के जमहूरियत साथ मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, मईशत, सियासत, खेल सब पर होगी बात। और अभी आपको बताएंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करा दिया गया। एशिया क्रिकेट कप सितंबर में खेला जाएगा और फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में हुआ है। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी हासिल की है एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान ने। एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करा दिया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे। हाफिज शहबाज नुमाइंदा 24 हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि पाकिस्तान में यूथ कप होना था, एशियन यूथ कप, जिसमें भारत ने खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये शर्त रखी थी कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तानी टीम भी भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएगी। तो आज कुआलालंपुर में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसकी भारत के चेयरमैन पीसीबी नजम शेट्टी जी कर रहे थे, उस इजलास में ये फैसला किया गया कि एशिया कप जो है भारत से मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने दो अंदाज में इनकार कर दिया था कि अगर भारतीय टीम यूथ एशियन कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती तो फिर पाकिस्तान टीम भी भारत नहीं जाएगी। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि एशिया कप अब सितंबर में 13 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा, जबकि यूथ पाकिस्तान दूसरी कामयाबी भी हासिल की कि यूथ एशिया कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, अलबत्ता पाकिस्तान की भारत की जो टीम है वो अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी। इसके साथ साथ आइंदा जो एनुअल जनरल काउंसिल मीटिंग होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो भी पाकिस्तान को दे दी गई है और उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा और उसमें तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज शहबाज। लाहौर के इलाके मिस्त्री शाह में फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। नौजवान ने तकरार के बाद सामने खड़े नौजवान को गोलियां मार दी। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाके मिस्त्री शाह में। यहां पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। नौजवान ने तकरार के बाद सामने खड़े नौजवान को गोलियां मार दी। आप ये फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कैसे झगड़ा हुआ और इस तू मैमे के बाद इस नौजवान ने डायरेक्ट फायर खोल दिया सामने खड़े नौजवान पर, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के बाद खबर टेक्सला से, जहां पर शहीद कांस्टेबल की बेटी की रुखसती के लिए डीपीओ अटक मेजबान बन गए। शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी के अखराजात डीपीओ अटक ने बर्दाश्त किए। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे हिस्सत अब्बास से। हिस्सत, बताइएगा इस हवाले से। जी, शहीद अफरेज खान की बेटी की शादी के मौका पर डीपीओ अटक ने सरदा का किरदार अदा किया। डीपीओ अटक इबादत निसार ने इस शादी के तमाम अखराजात उठाए और इस शादी की तकरीब में अटक इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की और मेहमानों को रिसीव किया। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि जो लोग डिक्टेटर के साथ थे कल छोड़ने वाले वो लोग थे। जिन लोगों ने असेंबली में मुझे वोट नहीं दिया वो लोग थे। पार्टी छोड़कर जाने वालों को कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। जो लोग पार्टी छोड़ गए वो हमारे थे ही नहीं। वो नैप कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज उन लोगों पर जो पार्टी छोड़कर चले गए उन पर गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग माजी में एक डिक्टेटर के साथ खड़े थे, ये लोग कभी हमारे थे ही नहीं। हट जाएंगे ये लोग इंशाअल्लाह ताला। और मुझे वो जो है वो आपके वो लोग चले गए थे अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। मैंने कहा हमारे थे ही कभी नहीं। और वो लोग थे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया
पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में असेंबली के अंदर, और जो 10-15 के करीब जो लोग थे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, ये भी लोग उनमें शामिल थे। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी। ख्वाजा हारिस एफजेडी की दस्तावेजात लाने पर बरहम, कहा जब शवाहिद पेश किए उस वक्त उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया, ये दस्तावेजात क्यों लाए, ये निकाल दे, फिर हम जिरा नहीं करते। हमने अकामे को भी नहीं जुटलाया। कब कहा अकामा जाली है, चेयरमैन नहीं रहे जज मोहम्मद बशीर बोले कि आप जिरा करें लेकिन मुख्तसर करें। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का कहना था कि वकील सफाई तस्लीम शुदा दस्तावेजात पर जिरा नहीं कर सकते। अकामा और तनख्वाह तस्लीम शुदा है लेकिन कहते हैं वसूल नहीं की। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ लोड शेडिंग का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ को इख्तियार बातचीत से मिला था, अपने लिए सब अच्छा, दूसरों के लिए गलत पर भी बोलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए जितना किया वो कोई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने का पाबंद है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर हम सियासतदान ये समझ लें लेवल फील्ड सबके लिए बराबर हो, हम सबको एहसास हो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क में क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अपने लिए सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, दूसरों के लिए गलत होती हैं। अगर नवाज शरीफ ये चीज़ महसूस करते, समझते, तो उस रिज़ल्ट पे ज़रूर ये तफसीलात देते। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, जिसके पास ओपन कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के पाबंद है। पीएसपी तशद्दुद केस में इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की वरीयत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि यहाँ जूता फेंकने पर भी दहशतगर्दी का केस बना दिया जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालिबा जायज़ है, इसकी हिमायत भी करते हैं। नवाज शरीफ ने बस ये बताना है कि पैसा कहाँ से कमाया और बाहर कैसे गया। इमरान खान ने नवाज शरीफ के अदालत की बराह रास्त कार्रवाई दिखाने की भी हिमायत कर दी। जूता फेंका किसी ने नवाज शरीफ के ऊपर खत्म नबूवत के इशू पे, और उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस लगा दिया। जहां तक ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का ताल्लुक है, ये इन्होंने इस कौम को ऐसा पागल बनाया हुआ है। बड़ा भाई कहता है कि जनाब साजिश हो गई, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला, सुप्रीम कोर्ट की साजिश, पाकिस्तानी फौज साजिश कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, और छोटा भाई जनरल बाजवा की ऐसी तारीफें कर रहा है कि न्याय कोई इश्क हो गया उसको जनरल बाजवा के साथ। जनूबी पंजाब का सूबा है, ना उनको शेयर मिलता है, ना उनकी आवाज़ सुनी जाती है, और आ जाता है सारा कुछ रायवंड के ऊपर। तो इसलिए ये बड़ी जायज़ डिमांड है, हम इनकी सपोर्ट करते हैं। सिंपल बात यह है, नवाज शरीफ ये बता दे कि ये जो बच्चों के नाम अरबों रुपया गया बाहर, वो पैसा किधर से कमाया और वो मुल्क से बाहर कैसे गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कुरम एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानेंगे, ताहिर राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर राठौर, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशन किया गया, और इस ऑपरेशन में जो 3 बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई थी, जिनमें खुदकश हमला और इसके अलावा IEDs के हवाले से भी 3 दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई थी, उनमें मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। IEDs भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, और दहशतगर्दों का जो आइंदा का मंसूबा था इन गिरफ्तारियों से, वो मंसूबा भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खाक में मिला दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं, जिनका कहना है कि हम पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ हैं। कहते हैं कि ऑपोजिशन में हूँ या इक़्तिदार में, हमेशा हक की बात करते रहेंगे। अमेरिका, अफगानिस्तान और इराक से निकल जाए, इस्लाम की बात करने वाले MMA की शक्ल में जिंदा हैं। हम
हम अपने मुल्क के आईन के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क की निज़ाम के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम पार्लियामेंट के साथ हैं। और जो हमारी जद्दोजहद का रास्ता वाज़ेह है, तो फिर ये ज़माना तो तफंग से फतूहात हासिल करने का नहीं। अब कौम को आपने समझाना है कि आपकी ये पर्ची तलवार का काम करती है, आपकी मर्जी है, आप इसको बातिल के लिए इस्तेमाल करें, आप इसको हक के लिए इस्तेमाल करें। और आने वाले इंतखाबात में खुद को इस काबिल बनाओ कि आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच सके, आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंच सके। लाहौर से आपको अपडेट करें। लाहौर में जनूबी पंजाब के लीगी अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में सरदार अवैस लगारी, अब्दुर्रहमान कांजो, सरदार अमजद फारूक खोसा, मलिक सुल्तान मोहम्मद हंजरा, सरदार आशिक हुसैन, जीशान गिरमानी और साबिक रुकने कौमी असम्बली सिद्दीक खान बलोच शामिल हैं। अरकान असम्बली ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अहम मुलाकात अमल में लाई गई है। लाहौर में जनूबी पंजाब के लीगी अरकान असम्बली हैं जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों की अगर बात की जाए तो मुलाकात करने वालों में सरदार अवैस लगारी, अब्दुर्रहमान कांजो, सरदार अमजद फारूक खोसा, मलिक सुल्तान महमूद और दीगर शामिल हैं। फारूक सत्तार से राबितों और मुलाकातों का सिलसिला जारी। फारूक भाई की मुश्किल को समझते हैं। MQM बहादुराबाद ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं किसी ना किसी तरह इख्तलाफात का हल निकालने की कोशिश की। फारूक भाई के साथ मसला किसी हल तक पहुंच जाएगा। फारूक भाई की इस मजबूरी को समझते हैं जिसकी वजह से वो एक राब्ता कमेटी जो 1993 से बनी हुई है, फरवरी 1993 से बनी हुई और चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नई जिम्मेदारियों पे संभालते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये सिलसिला फरवरी मार्च 1993 से चल रहा है। ये राब्ता कमेटी अपने काम करते रही है। अच्छे और बुरे दिन उसने देखे हैं और बड़ी कामयाबी से मुश्किल हालात को भी निकाला है और अच्छे हालात को भी निभाया है। फारूक भाई एक ऐसी फरमाइश हमसे कर रहे हैं जिसको पूरा करने के इख्तियारात हमारे पास भी नहीं है। अहम खबर से आपको आगाह करें, गुलूकार राहत फ़तेह अली खान ने 35 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा करवा दिया। FBR ने राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी थी। मजीद हम जानेंगे। रिजवान नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, 35 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा करवा दिया गया है, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, शोहरा आफाक गुलूकार राहत फ़तेह अली खान ने साल 2017 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवाया था और ना ही अपने असासाजात की तफसीलात FBR पर जाहिर की थी, जिसपे FBR की जानिब से राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया था। राहत फ़तेह अली खान ने साल 2017 के इनकम टैक्स की मद में FBR को 35 लाख रुपए की अदायगी कर दी है। इस हवाले से FBR जरा का कहना है कि गुलूकार राहत फ़तेह अली खान का साल 2015 का इनकम टैक्स ऑडिट भी जारी है और राहत फ़तेह अली खान की प्रॉपर्टी समेत उनके तमाम एसेट्स का जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिएगा। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर,
कहीं ज़ाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। हुंजा उल्तर नाले में पहाड़ी तोदा गिरने से लापता 3 अफराद की तलाश इस वक्त जारी है। लापता 2 अफराद का ताल्लुक हुंजा अलतत और एक का ताल्लुक लाहौर से है। बुलंदी पर हादसा पेश आने की वजह से रेस्क्यू के लिए भारी मशीनरी के इस्तेमाल में दुश्वारी का भी सामना है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अली यूनुस से। अली यूनुस, बताइएगा इस वक्त क्या बताते हैं रेस्क्यू एहलकार? जी बिल्कुल, ये उल्तर का इलाका है, हुंजा करीमाबाद का बलाई इलाका है। यहाँ पर पहाड़ी तोदा गिरा था
جس کے بعد 3 افراد جو ہیں بلکہ 3 اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، 2 مقامی طالب علم ہیں اور ایک جو ہے وہ لاہور کا طالب علم ہے. یہ سیاحتی مقام تھا تو یہاں سیاحت کی غرض سے وہ یہاں آئے تھے. تو اچانک اتر کا جو پہاڑی تودہ ہے یہ گرا ہے اور یہ لاپتہ ہیں اب تک، جبکہ قانون انتظامیہ کے علاوہ لوکل رضاکار، پاک آرمی اور ریسکیو 112 کے احساس ہیں وہ اس وقت وہاں پر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نئی کارروائیوں میں مصروف ہے. ابھی تک یہ کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن یہ تینوں افراد جو ہے تاحال یہ نہیں ملے ہیں، یہ تودے کے نیچے دب گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے اسلام آباد پنجاب ہاؤس ملنے کے لیے آنے والے کارکن قیادت سے ناراض ہو گئے. نواز شریف سے ملاقات نہ کرانے پر کارکنوں نے پنجاب ہاؤس کے باہر احتجاج کیا ہے. کارکنوں نے شکوہ بھی کیا ہے کہ میاں صاحب ہمیں وقت نہیں دیتے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بشیر چودھری سے. بشیر چودھری بتائے گا کیا کہنا ہے کارکنوں کا، ایک اور شکوہ میاں نواز شریف کے لیے؟ جی بالکل، عموماً جب بھی نواز شریف پنجاب ہاؤس آتے ہیں تو کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان سے ملاقات کے لیے آتی ہے، لیکن آج جب کارکن وہاں پر پہنچے تو نواز شریف نے ان سے ملاقات نہیں کی، جس کے باعث کارکن جو ہے وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے پنجاب ہاؤس کے باہر شدید احتجاج بھی کیا، نعرے بھی لگائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب کارکن کو جو ہے وہ عزت دی جائے گی. کارکنوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب مشکل پڑتی ہے تو گاڑیوں کے آگے وہ لیٹتے ہیں لیکن عہدے اور عزت جو ہے وہ کسی اور کو ملتی ہے. تمام کارکنوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے وزیر مملکت عابد شیر علی جو ہے وہ باہر آئے. انہوں نے کارکنوں کو منایا اور جب انہوں نے کارکنوں کو منا لیا تو پھر کارکنان نے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر چودھری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کتاب میں وہی لکھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ کوشش کی ہے کہ کتاب لکھتے وقت کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں. میں نے اس میں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور جو کچھ اس دوران میرے ہاتھوں سے انجام پایا، میں نے من و عن اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے اور میں بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کی. میں اپنی بایوگرافی لکھتے وقت اپنے قلم کو صرف حالات اور واقعات کے بیان تک محدود کیا ہے. اپنی رائے دینے یا کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری یہ کتاب جس کو میں نے سچ تو یہ ہے کا نام دیا ہے میرے کسی ذاتی تعصب کا یہ آلودہ ہو. لہذا میں نے حالات اور واقعات کو جو کہ تم عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے، رائے وہ خود قائم کر سکتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج میں جس مقام پر ہوں چودھری ظہور الہی کی وجہ سے ہوں. نواز شریف NRO کی تلاش میں ہے. ملک میں جھوٹ بولنا فیشن بن گیا. پہلے کہتا تھا بچے سے تنخواہ نہیں لی، اب کہتے ہیں لی ہے. کاش پاکستان میں چین کا نظام آ جائے، کرپٹ لوگوں کو گولی مار دی جائے. وہ لاہور میں چودھری شجاعت حسین کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے. میں آج جس جگہ کھڑا ہوں اس کی بنیاد میں چودھری ظہور الہی اور شجاعت کی والد شہزادہ بیگم کا اور چودھری شجاعت اور پرویز کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی روایات نہیں چھوڑی. اب سارے لوگ اس بسیدہ نظام کو سہارا دے رہے ہیں جس میں اس ملک میں جھوٹ بولنا فیشن ہے. وہ سارا 1 سال تقریر کرتا رہا یا 6 مہینے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے بچے سے تنخواہ نہیں لی، اب ہفتہ ہوا کہتا ہے لی ہے یا نہیں لی ہے. یار بھائی ایک فیصلہ کرو، لی ہے یا نہیں لی ہے. جس دن نواز شریف خاندان نے سچ بولا ان کی زندگی کی سیاست کا آخری دن ہوگا. نواز شریف کو جسٹس قیوم چاہیے یا جنرل بٹ چاہیے. اس کا گزارا باجوہ کے ساتھ یا جسٹس کے ساتھ نیب کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے اڑاؤ پر نیب کو، اڑاؤ پر جسٹس ثاقب نثار. پوری انہوں نے پلاننگ کی ہے اس ملک میں کردار کشی کرنے کی تینوں حضرات کی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بھی نواز شریف پر برس پڑے. کہتے ہیں نواز شریف مجھے کیوں نکالا کا سوال کرنے سے پہلے اپنے گریباں جھانکیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف ووٹ کی عزت کی بات تو کرتے ہیں تو منتخب سینٹ کے چیئرمین کو دیے گئے ووٹ کی بھی عزت کریں. وہ لاہور میں چودھری شجاعت حسین کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے.
जो नवाज शरीफ को वोट देता है, महमूद खान को देता है, वो सही लोग हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं वो लोग मेरे ख्याल में सही नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो अगर वो नवाज शरीफ का जीत जाता तो वोट का इज्जत है, अगर दूसरे को देते हैं तो वोट का इज्जत नहीं है, उसका तकद्दुस पामाल हुआ है। हम भी ये कहते हैं कि अगर वोट का इज्जत वाली आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐवान बाला सेनेट है और सेनेट का चेयरमैन है, उसको इज्जत और एहतराम देना चाहिए, जिनको जमहूरी पार्टियों ने वोट देके उसको चेयरमैन सेनेट बनाया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं था, स्टेट का रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वहाँ पे स्टेट का नाम कोई नहीं था। डॉक्टर आसिम का कहना है कि नवाज शरीफ को अपने करतूतों की सज़ा मिल रही है, उन्होंने जो लूटा पैसा खाया इसकी सज़ा मिल रही है। जिस तरह मैं मुकदमात का बहादुरी से सामना कर रहा हूं, नवाज शरीफ भी करें। चौधरी निसार का मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है और ऐसे लोगों का मुस्तकबिल ख़त्म होना भी चाहिए। वो कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उसको अपने करतूत की सज़ा मिल रही है और क्या हो रहा है, जो वो हरकतें करेगा और जो पैसे खाए हैं, जो अवाम को लूटा है, इसकी सज़ा मिल रही है। फेस करे तगड़े तरीके से। मैं भी तो फेस कर रहा हूँ ना, मैं भी कोर्टों में आ रहा हूँ, मैं जुडिशरी को गालियाँ नहीं दे रहा, मैं एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ नहीं दे रहा, मैं अपना ट्रायल फेस कर रहा हूँ चुपचाप। कभी आपने मुझे देखा है किसी को गालियाँ देते हुए? चौधरी निसार का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? उसका मुस्तकबिल ख़त्म है और उसका मुस्तकबिल ऐसे लोगों का ख़त्म नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान जैसे पसपाना सूबे के पैसे कौन खा गया? सूबे में कोई गवर्नेंस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी सेहत और तालीम पर बरहम हो गए। डॉक्टर्स को तनख्वाह न मिलने तक सेक्रेटरी सेहत की तनख्वाह बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में तालीमी इदारों और महकमे सेहत की सहूलतों के हवाले से अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान से इस्तफसार किया कि क्या पानी से मुतालिक फहरिस्त मुकम्मल कर ली, अस्पतालों की हालत देखी है आपने? एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार समाअत के दौरान सेक्रेटरी सेहत पर बरहम नजर आए। बोले कि सिविल अस्पताल में एक भी MRI मशीन नहीं। आप डॉक्टर को 24,000 देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर 35,000 लेता है। अदालत आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी सेहत का कहीं और तबादला करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी तालीम से इस्तफसार किया कि सूबे के दूर दराज इलाकों के स्कूलों की हालत जार बताएं, जिस पर सेक्रेटरी तालीम ने बताया कि 50% स्कूलों में पानी नहीं, 11,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें नहीं, 10 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करके 15 रोज में रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा मुजीबुल्लाह ने अदालत को बताया कि यहाँ जूनियर सीनियर की जगह पर आते हैं। हुकूमत सियासी मुदाखलत खत्म नहीं कर रही। चीफ जस्टिस मुजीबुल्लाह पर बरहम हो गए। बोले कि जाकर बच्चों को पढ़ाओ, लीडरी मत करो। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि आप जब खुद को लाचार और बेबस कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। आप बहुत मजबूत और हौसलामंद लोग हैं। वो कोयटा में एक तकरीब में वुकला से खिताब कर रहे थे। खुली कचहरी में आज आपके सामने लीगल रिफॉर्म की आगाज का ऐलान यहाँ से कर रहा हूँ। मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, मुझे वो ब्रेन्स चाहिए, मुझे वो पैशनेट लोग चाहिए जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ दे सके। आपको पता है कि हमारे कवानीन बहुत पोशीदा हो चुके। सिविल प्रोसीजर कोड जो कि हमारी अब समझे कि इस सिविल जुडिशल सिस्टम में बहुत एक बाइबल की हैसियत रखती है, ये 1908 में मुरतब हुई और आज के हालात को केटर नहीं करते। यहाँ पे जजेस के पास बहुत ज्यादा काम है और उस काम की वजह से वो इतनी तेजी से मुकदमा को नहीं निपटा पाते। साथ ही आप में भी जिम्मेदारी है कि आप ताउन फरमाइए और जिस हद तक मुमकिन हो सके आप ये तारीख और हड़ताल का कल्चर खत्म करें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार
रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज। इस्लामाबाद पुलिस में एहलकार ही इसमतों के दर पे हो गए, नौकरी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। इंसाफ की दुहाई देती मजबूर लेडी पुलिस एहलकार चीफ जस्टिस और IG इस्लामाबाद को लिखे खत में रो पड़ी। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में जारी इंसानी दरिंदगी की तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में लेडी एहलकारों को नौकरी की कीमत कितनी भारी पड़ रही है। हवस के पुजारियों के हाथों लुटने वाली लेडी पुलिस एहलकारों ने चीफ जस्टिस और IG को मदद के लिए पुकारा। IG इस्लामाबाद के नाम बेनामी खत में खवातीन एहलकारों ने चीख चीख कर हुक्काम से मदद तलब की। अफसर के आगे किसी भी पेशी से पहले रीडरों और ऑपरेटरों की हवस का निशाना बनना पड़ता है। अकेले कमरों में बुलाकर गैर अखलाकी सरगर्मियों पर मजबूर किया जाता है। इन मजबूर और दुखियारियों ने बताया कि इनके पास इस घनौने धंधे की कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ चीफ जस्टिस को ही पेश करेंगे। अपडेट करें आपको, चीचा वतनी ज्यादती के बाद जिंदा जलाए देने वाली बच्ची नूर फातिमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे राना सलीम से। राना सलीम, बताइएगा कौन कौन सी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की? जी बिल्कुल, 8 साल नूर फातिमा जो जलाकर जो जलने की वजह से हलाक हो गई थी, मुबैना तौर पर ज्यादती का भी उनके वर्सा का कहना है। आज उसकी नमाज जनाजा जोर की नमाज के बाद अदा कर दी गया है, जिसमें शहर की सियासी समाजी और ताज़ा तंजीमों के अलावा स्कूलों के बच्चे और पुलिस, RPO, DPO और DSP सिटी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना सलीम। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां घरेलू तनाज़े पर शौहर ने बीवी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत राजपुर से। लियाकत, आगाह कीजिएगा, खातून की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, ये 40 से 80% जिस्म खातून का झुलस चुका है और पुलिस ने ASP मजहर इकबाल ने मुकदमा दर्ज करवा कर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अभी जुडिशल रिमांड के लिए मुलजिम को पेश किया गया है, जहां पर जो है वो 7 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जो है वो मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया है। ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरी प्यारी नन्ही सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज।
حق بیانی کے قحط میں میری زبان قحط کا شکار ہوئی نہ ہوگی۔ آپ کی رائے محترم، مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کے لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے 30 سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ اوے نواز شریف ہمارے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے۔ آزا دو کون آزا فراڈ۔ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے، مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے، مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے۔ رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے 30 سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام DNA۔ دیکھیے پروگرام DNA 30 سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی، اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ، پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز۔ کیونکہ ہم کریں گے انکشاف۔
देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। आपको बताएं, कराची में बिजली का बहरान के इलेक्ट्रिक के दावों के बावजूद इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल 5E न्यू कराची में लोड शेडिंग के बायस तलबा सख्त गर्मी में पेपर देने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं, जहां पर 3 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं इम्तिहान दे रहे हैं और 6 अजला के अंदर 300 से ज़ायद जो इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। और यहां पर जो आज 5वां पेपर है और यहां पर बिजली के लोड शेडिंग की सूरत हाल दिखाऊँ कि कहा गया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि सुबह के औकात में और शाम के औकात में जो पेपर्स के जो औकात है उनमें लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने एक नामानी बिजली गायब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंखे बंद हैं और यहाँ पर सेंटर का भी ये हाल है कि पंखे ही नहीं लगे हुए सिरे से यहाँ पर। और यहाँ पर जो इमारत की भी खस्ता हाल है, काफ़ी जो भूत बंगला लग रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं है। बच्चे यहाँ पर पेपर देने में मजबूर हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, उन्होंने रहम की अपील की कि बच्चों पर रहम करे कि इलेक्ट्रिक जो इम्तिहानी मराकज़ में बिजली ना ले। और जो बच्चे हैं, तलबा और तलबात हैं, वो भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि सुबह भी बिजली नहीं, शाम बिजली नहीं, रात बिजली नहीं, हमें घर पे पढ़ाई करने पे भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं तो हमारी पसीने से कॉपियाँ ख़राब हो जाती हैं, कहीं पंखे नहीं होते तो कहीं लाइटें नहीं होती। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में KMC का गुरुमंद और जमशेद रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। KMC के अमले ने सड़क किनारे कायम तजावुजात तहवील में ले लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन अब्बास, KMC की ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल KMC की जानिब से जो है ऑपरेशन किया गया। गुरु मंदिर और जमशेद रोड पे एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई की और वहाँ पे मौजूद जो तजावजात थे उनको हटाने का सिलसिला जारी है। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद है और पुलिस के साथ साथ सिटी वार्डन और एंटी इंक्रोचमेंट का अपना अमला भी मौजूद है। जब हमारी बात हुई सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से, तो उनका ये कहना था कि शहर भर में जो है वो दोबारा एक बार फिर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया और शहर में जहाँ जहाँ तजावजात कायम है उसको खत्म किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से दावे तो बहुत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे मुल्क में होने वाली रिमझिम की। तो कोहाट और जिला के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी हुई है, जिसके बायस मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं कोहाट और उसके अजला के हैं, जहां पर तेजदार बारिश हुई है और जमकर बारिश हुई है। शहरी जो हैं वो लुत्फानंदोज भी हुए हैं इस खुशगवार मौसम से और तेज बारिश में इंजॉय भी काफी किया है और जालाबारी भी हुई है और सर्दी में भी थोड़ा इजाफा हो गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।